Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with the second part of lesson number 11, which is cell structure and microorganisms. Right? In the last class we studied all about the cell structure, right? And today we will be starting with the microorganisms part, right? Our सेल स्ट्रक्चर में हमने जो भी पढ़ा था इन द लास्ट क्लास वी विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन ऑफ इट एंड देन वी विल स्टार्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, some harmful microorganisms, and you will come to know many things about microorganisms in this lesson. Okay, so let's just do a quick revision on cell structure and start with microorganisms. Okay, so in the last class we studied about the cell structure. So what are cells? Cells are the basic fundamental unit of life, right? This is what the definition we studied. What are cells? Cells are the basic fundamental unit of life, right? And there are some questions given which I want you to answer now. Is what is the name of the minute component of which the body of living organism is made? Can you tell me of which component is our body made up of? So the answer for this is our body is made up of cells, right? And the next question is the number of the smallest unit the same in the bodies of all living organism? Is the number of cell is same in all the living organism? So it depends on the body of living organism. We saw that the size of the cell is also not the same in every living organism, right? जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, उन सेल्स का साइज एंड उन सेल्स का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि सेल्स को फंक्शन क्या परफॉर्म करने हैं. Okay, so it is not the same. Now let's see what are cell. This is the structure of cell. Okay, and आप ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम and cell membrane. These are all the cell organelle. ओके, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास लंग्स है, वी हैव लीवर, वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, वी हैव हार्ट. Like that way the cells also have some of the organelle, right? So this nucleus, nucleolus, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, what are they? They are the cell organelle, right? This is what we studied in the last lesson. And what we are going to study in this lesson, we will be studying about what is a cell, what is the definition of it, how are the cell structure, what are the types of the cell, and what are the functions that the cells have to perform. Okay, so see, what are the characteristics of the cell? मतलब सेल का काम क्या है? एक तरह से सेल को हम कैसे पहचानेंगे? सेल जो है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, उनके बॉडी को सपोर्ट देना, उनके बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, ये किसका काम होता है? इट इज़ द वर्क ऑफ द सेल. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग दैट सेल्स प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स सेल क्या दे रहा है? एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट. सेकेंड पॉइंट, हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एंड वेयर इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट? दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओके, स्ट्रक्चरली द सेल हैज cell organelle which are suspended in the cytoplasm. Can you see the structure of cell and can you see the cytoplasm? Right, this is the cytoplasm. Can you see the pink color, this background, orange or pink color, this background is the cytoplasm. And cytoplasm के ऊपर आप देखोगे कि nucleus is placed on cytoplasm, nucleolus is also placed on cytoplasm.
Mitochondria is also placed on cytoplasm. So the every organelle the cell is having, it is placed on cytoplasm itself, because cytoplasm है क्या? It is a liquid which is sticky, and because it is sticky, all the organelle will get suspended in the cytoplasm. Okay. Then we saw mitochondria present है. Mitochondria जो अभी जो cells है उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, and for doing each and every work they need certain energy, right? So they are having, so the cell's energy requirement is fulfilled by mitochondria. Okay. Now the next one is lysosome. Lysosome क्या करता है? सेल के पास जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? It is the work of this lysosome. Okay. Then endoplasmic reticulum, ER. Endoplasmic reticulum को हम और क्या बोलते हैं? E for endoplasmic and R for reticulum. तो endoplasmic reticulum का short form is ER. Okay. तो ER का काम क्या है? To synthesize the selective molecules and process them, eventually directing them to the appropriate location. ठीक है. तो ER का काम क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करना. सपोज अभी ऐसा कोई है, ऐसा एक सेल है जिसको सिर्फ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे ER का काम क्या होगा? टू प्रोवाइड ओनली द प्रोटीन मॉलिक्यूल. उसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं जाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल ER एज अ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल फॉर अस. ओके. बिकॉज ये किसी और को आने ही नहीं देगा. अगर आपको कपड़े चाहिए तो इट विल जस्ट प्रोवाइड यू द क्लोथ्स, इट विल नॉट प्रोवाइड यू द फूड. लाइक दैट वे इज द वर्क ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. नाउ सी द सेल्स, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स के. वन हो गया प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये यूनिसेल्युलर होगा, एंड इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी नॉट डेवलप्ड. ठीक है. तो न्यूक्लियस विल नॉट बी वेल डेवलप्ड. तो आई राइट नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ओके. एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दे आर मल्टीसेल्युलर है. इट मीन्स इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड होगा. ओके. Now, see, this is the plant cell and animal cell. This you will be studying later. We have studied this, right? Now, the important thing is what are the essential functions of the cell, because you need to know the functions, right? तो cell का काम क्या है? हमारे body को एक support provide करना और एक structure provide करना is the work of our cell. Then ये जो माइटोसिस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच यू विल बी स्टडिंग इन योर लेटर क्लासेस. ठीक है. तो ये एक टाइप का सेल डिवीजन है. तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ को फैसिलिटेट करने का काम भी किसका है? सेल का है. देन सेल ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, एंड cell also provide the energy and it allows the transport of substances. Okay, so these are the basic essential functions of the cell which you should know. Then we saw the most important basic thing which you should know about the cell is हमारी human body किससे बनी हुई है? We are made up of cells. Okay. अब जब बहुत सारे cells एक साथ आते हैं तो they make up a tissue. Okay. जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे दे विल फॉर्म एन ऑर्गन. ठीक है. जब ऑर्गन साथ में आके काम करेंगे दे विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम बन गया है इट मीन्स अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. मीन्स हम ऐसे बने हैं. ओके. अंडरस्टूड. पहले हमारा पूरा बॉडी सेल से बना. जब 3-4 सेल एक साथ आ गए दे फॉर्म द टिश्यूज साथ में आ गए दे फॉर्म दी ऑर्गन साथ में आ गए दे फॉर्म दी ऑर्गन सिस्टम चलने लगा. ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? रेस्पिरेटरी प्रोसेस को करने के लिए वी नीड आवर लंग्स, वी नीड आवर नोज, वी नीड ट्रैकिया. तो ये 3-4 ऑर्गन्स एक साथ आके व्हेन दे विल वर्क टुगेदर, इसको ही हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड दिस इज हाउ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करती है. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग विच यू शुड नो इन द सेल स्ट्रक्चर. ओके. Then we studied this level of cellular organization. As I told you, मैंने जो बताया वो
ऐसा था, इट इज लाइक दिस. ओके, तो सेल से क्या बनते हैं, यहाँ पे अगर इफ आई क्वेश्चन यू कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं, तो यू विल से ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन सिस्टम से बने हैं. फिर आई विल आस्क यू ऑर्गन सिस्टम कैसे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स. फिर मैं पूछूंगी ऑर्गन्स कैसे बने हैं, यू विल से ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू. और टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल से. सो दिस इज द वन एंड द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू. ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड लेवल वाइज. ओके, now then we studied about the great scientist named Robert Hooke. Then we studied about the two great scientists M.J. Scladden and Theodore Schwann. And हमने देखा कि रॉबर्ट हुक was the scientist जिन्होंने cells को नेम किया था. And this cell word is derived from a Latin word called as cella, जिसका मीनिंग क्या होता है, small room. Okay, and ये जो दो साइंटिस्ट थे M.J. Scladden and Theodore Schwann, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. एंड वो स्टेटमेंट क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बने हुए हैं, सेल से बने हैं. एंड सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय M.J. Scladden and Theodore Schwann. ओके, एंड 1885 में रुडोल्फ विर्शॉ ही स्टेटेड दैट जितने भी सारे सेल्स हैं वो कैसे बने हैं, दिस सेल्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पहले जो सेल्स होते हैं उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं. ओके, देन वी सॉ कि सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, इतने इतने छोटे छोटे से होते हैं, तो ये हमें विजिबली दिखेंगे भी नहीं अपने आँख से. एंड फॉर दैट वी रिक्वायर समथिंग टू सी दैट. सो वी नीड एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स. ओके, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज. अब जो यूनिट्स यूज करते हो आप सेल्स को मेजर करने के लिए इज माइक्रोमीटर and nanometer. So this is an important fill in the blanks. Okay, dash and dash are the units which are used for measuring the size of the cells. You should know they are micrometer and they are nanometer. Okay, this is also important. Dash is used for observing the cell. You should know that the compound microscope is used for observing cells. Okay, then we studied that 1 centimeter is equal to 10 millimeter, right? And 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. 1 micrometer is equal to 1000 nanometer. This is the conversion which you should know. And then we did with this experiment जहाँ पे हमने onion peel में using saffranin and eosin हमने देखा, जब माइक्रोस्कोप में आपने ये onion peel को observe किया, you saw this, right? So these are the cells of the onion. Then we studied about the cell size and we saw that जितने भी cells present होते हैं सबका shape जो है वो अलग अलग होता है. and ये shape किस पे depend करता है, it is related and it is dependent on the function which they have to perform. For example, यहाँ पे कुछ अलग अलग cells दिए गए हैं and you can notice कि हर एक cell का shape is different, right? स्पायरोगायरा देखो, स्पायरोगायरा का cells are different, अमीबा का cells are different, fat cells का cells are different, red blood cells, egg cell, nerve cells, bone cells, sperm, muscle cells, surface cells. So these are the different types of cells which are found in our body and ये सारे cells का जो size and shape होता है that is different. Okay, तो cells के shape कैसे कैसे हो सकते हैं, they may be circular, they may be rod shaped, they may be columnar, they may be spiral, they may be oval or rectangular in shape. ठीक है, अब दो टाइप के सेल्स होते हैं, वन इज एनिमल सेल एंड वन इज प्लांट सेल, राइट? वी हैव स्टडीड दिस. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल के पास, आई एम राइटिंग हियर फॉर एनिमल, ओके, एंड प्लांट सेल. तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स के पास होता है. ठीक है, एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट्स के पास होता है. ओके, एनिमल्स के पास बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एंड प्लांट के पास सिर्फ एक वैक्यूल होता है जिसका साइज बड़ा होता है. ओके, सी और इट इज रिटन, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स कंटेन
single large vacuole, while the animal cells will have small 2-3 vacuoles in it. ठीक है, and this is the plant cell and animal cell, and I hope that you have done the homework and you have drawn the plant cell and animal cells 2 times. Okay, then we saw that there are 4 main different parts of the cells, that was cell wall, plasma membrane or cell membrane, cytoplasm and cell organelles. सेल वॉल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल का, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, एंड सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होता है. एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल्स सेल वॉल आर एब्सेंट. नेक्स्ट वी सॉ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वी ऑल्सो कॉल इट एज सेल मेम्ब्रेन, राइट. एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल, and it is the outermost covering of the animal cell. Then we studied about cytoplasm. Cytoplasm कैसा होता है, it is sticky, okay. Liquid part in the cell is the cytoplasm, और ये कहाँ पे present होता है, न्यूक्लियस के आसपास, इसलिए इसको cytoplasm बोलते हैं. and ये कहाँ पे होता है, suppose this is the plasma membrane and this is the nucleus. तो इन दोनों के बीच में कौन होगा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, एंड हमें पता ही है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या आते हैं. इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस, इट इंक्लूड्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स, एनिमल्स के पास नहीं होता ये, राइट. Then it includes mitochondria, it includes vacuole, it includes ribosome and many more, right. So these are the 4 important parts of the cell, right. And then we studied the functions. Now today we are going to start with this microorganisms part. Now can you tell me what is meant by microorganism? As I said, micro मतलब क्या होता है, micro मतलब small, and organisms तो हमें पता ही है, right. तो ये small organisms हमें हमारे naked eye से दिखते भी नहीं है. For seeing the microorganism you need to use an special instrument which is called as microscope, right. हम microscope बोलते हैं ना उसको. So we use a microscope for seeing the microorganisms. Okay, now you have to categorize the following organisms into 2 groups according to the size: amoeba, paramecium, euglena, snail, elephant, pigeon, worms. अब according to the size, मतलब size में small कौन है and big कौन है, you have to classify them. तो amoeba and paramecium जो है they are small. euglena, these are all unicellular organism, whereas the snail, elephant, pigeon and worms, these are multicellular organism. It means they are made up of many cells. Okay, so what we have learned that there are countless living organisms on the earth, है ना. आप काउंट कर सकते हो क्या कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है? नो ना, वी कांट काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. So of this, the organism which we cannot see with our eyes but can only be observed under a microscope, they are called as microorganism. See, we can count the number of organisms which are present on earth which we can see, right. जो हम देख सकते हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखने वाले हैं. तो हाउ यू विल सी एंड हाउ यू विल काउंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. So the definition for microorganisms becomes is the organisms which we cannot see with our naked eye, with our eyes, but can only be observed under a microscope are called as microorganisms. Okay, so the definition for microorganism is important and you should know it. ठीक है. Now how are the occurrences of microorganism took place? Microorganisms आए कैसे? See, जो हमारा एयर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? एयर के अंदर, राइट. तो एयर के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वाटर के अंदर है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, फूड के अंदर है, सीवेज में है, गार्बेज में है, और एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ओके,
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर सॉलिटरी. सॉलिटरी मतलब क्या? वो सिंगली लीव करते हैं, सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. सॉलिटरी मीन्स व्हाट? सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. इट मीन्स दे लीव सिंगल सेल से. ठीक है. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामोशियम. ये सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको सॉलिटरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल रहना पसंद नहीं करते, उनको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो अपने ऐसे कॉलोनीज बनाते हैं एंड फिर वो साथ में रहते हैं. दिस आर कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको कॉलोनीज में रहना पसंद है. ओके. एंड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज अभी एक प्लांट है या एनिमल है. दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द एनिमल. ये प्लांट है और ये एनिमल है. दे बोथ हैव डाइड. ये डेड प्लांट एंड डेड एनिमल है. ओके. अब ये इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके रहते हैं, तो सी हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. एयर के अंदर, वाटर के अंदर, फूड के अंदर, कचरे के अंदर, बॉडी, plants and animals के body के अंदर. even when they will die, that time also plants and animals के body के ऊपर this microorganism will come and they will stay. So microorganism is present everywhere around us. Okay. So how you will observe and how you will measure the microorganism? This question arises in your mind, right? इतने सारे microorganism हैं, तो उसको हम देखें कैसे और उसको measure कैसे करें कि कितने हैं. So for that we can do one experiment. What you can do is, आप एक piece of bread लेना. Suppose this is a bread. Okay? Bread लेना और आप एक टिफिन बॉक्स लेना जो एकदम tightly close हो. ठीक है. So you have to keep a moistened piece of bread और भाकरी in a closed box. ठीक है. Closed box में आपको रखना है ब्रेड और भाकरी को. उसके बाद you have to observe it after 3 to 4 days using a magnifying lens. Magnifying lens पता है सबको? It looks like this. ऐसा होता है, कांच होता है यहाँ से, and when you will zoom it तो आपको बड़ा दिखेगा वो. तो आपको magnifying lens से ये भाकरी को 3 से 4 दिन बाद देखना है. Okay? This is the first thing you can do. Second thing what you can do is, आप एक स्लाइड लेना. Suppose this is the slide. ठीक है. ये कांच का होता है. Okay? ऐसे शेप में होता है. अब ये स्लाइड है, आपको इसके ऊपर मडी वाटर मतलब जिसमें मिट्टी होगी ऐसा एक पानी का ड्रॉप डालना है. ओके. या तो फिर आपको एक गंदे जगह से, पॉन्ड से पानी लेके आना है जो गंदा होना चाहिए. पानी का ड्रॉप इस पर डालना है और उसके बाद आपको उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है? सी दिस इज हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल लुक लाइक. आपका जो स्लाइड था ना, जो मैंने ऐसे बनाया था, इसके ऊपर आपको एक ड्रॉप पानी डालनी है, उसको सुखाना है एंड फिर आपको यहाँ पे रखना है. फिर आप यहाँ से अपने आईज से देख सकते हो कि आपको दिख रहा क्या है. ओके. यहाँ से देखोगे नीचे तो आपको ये स्लाइड पे आपने जो भी रखा है, यू विल कम टू नो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा कैसा है. ओके. थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज, आप ये फिर से स्लाइड लेना, ग्लास स्लाइड. ओके. ग्लास स्लाइड लेने के बाद इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ योगर्ट मतलब क्या? दही या बटर मिल्क. बटर मिल्क मतलब छाछ. उसका एक ड्रॉप डालना. ओके. यू हैव टू स्प्रेड इट. इतने बॉक्स में, थोड़े से बॉक्स में स्क्वायर बना के स्प्रेड करना है. ओके. ऐसे स्प्रेड करने के बाद आपको इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है एंड आपने जो भी देखा होगा, यू हैव टू ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द माइक्रोब्स जैसे आपको दिखे. सपोज अगर आप योगर्ट देखोगे तो आपको कुछ ऐसे पर्पल पिंक कलर के कॉलोनीज दिख सकते हैं, या आपको ऐसे कॉमा शेप दिख सकता है. ओके. आपको अलग अलग शेप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, तो वो आपको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक के अंदर. ओके. दिस इज द एक्टिविटी जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर पाओगे और मेजर भी कर पाओगे कि वो कितने हैं. Okay. Now, do you know that we cannot see objects which are smaller than 100 micrometer in size with our eyes? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर उसका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम है तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हो. Okay. So we make glass slides of the microorganisms and observe them under a compound microscope. Glass slide बनाना मतलब क्या? अब सपोज आपको एक चीज़ है, सपोज आपने दाल ले लिया है, दाल का एक ड्रॉप. ओके. द दाल दैट वी ईट.
राइस एंड दाल, दाल का ड्रॉप ले लिया यहाँ पे, दिस इज द स्लाइड, आप उसको ऐसे ड्राई कर दो, ऐसे फैला के, ओके। इसके लिए भी हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कॉल्ड एज नाइक्रोम लूप, पर वो आपके लिए अभी नहीं है, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस, आपको स्लाइड पे डालना है, फिर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। वैसे ही अगर आपको किसी और का करना है तो यू कैन डू फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि माइक्रोस्कोप के अंदर तीन लेंसेज होते हैं, राइट। सी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस दिख रहा है आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब इनका जो मेजर होता है वो अलग अलग होता है, एक होता है 10x, एक होता है 100x और एक होता है 1000x, ठीक है। सो दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज विच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको 10x के अंदर इसको देखना है, इससे क्या होगा कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाओगे, राइट। अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कुछ नहीं दिख रहा, सपोज आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया है एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको स्विच किसको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको 1000x से ज़्यादा मैग्नीफाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बिकॉज मैंने क्या बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 3 लेंसेज होते हैं, 10x, 100x एंड 1000x। तो अगर 1000x से ज़्यादा चाहिए आपको, तो आपको कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, तो ही आप इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाओगे, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे अलग अलग साइज दिए गए हैं माइक्रोब्स के। पैरामोशियम का साइज कितना है, अबाउट 100 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया ऑफ द टाइफॉइड, सबको पता है टाइफॉइड होता है जहाँ पे फीवर आता है, कफ होता है, बॉडी पेन होती है, राइट। तो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सैल्मोनेला, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। जिसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया है इसका साइज कितना होता है, 1 से 3 माइक्रोमीटर। सी, अगर आपको इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो माइक्रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सी, मीटर तो हम लोग को पता है, मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, m, और माइक्रो का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐसा u बनाना है, पर ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं माइक्रोमीटर, तो ये हो गया 1 से 3 माइक्रोमीटर, ओके। देन जो पोलियो वायरस होता है उसका साइज होता है 28 नैनोमीटर। अभी हमने पहले देखा था ना कि हम सेल्स को किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर्स में। तो पोलियो वायरस जो है उसका साइज क्या होता है, 28 नैनोमीटर, ओके। नाउ माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर। अब अभी हमने क्या देखा कि 100 माइक्रोमीटर से जिसका साइज स्मॉल होगा वो हमें दिखेंगे नहीं, एंड यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोब्स का साइज ही 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी दैट। माइक्रोब्स क्यों नहीं दिखते हमें, बिकॉज उसका साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, इसीलिए, ओके। एंड इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनल्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल। इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये, फिर भी इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से एक सिंगल सेल में पूरा उनका काम करवाते हैं। दे परफॉर्म ऑल देयर सेल्यूलर लाइफ प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ सी, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है। सो अमॉन्ग द स्केचेस यू हैव ड्रॉन, डू यू फाइंड आउट एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू सी बिलो। अभी आपको यहाँ पे स्केचेस बनाने बोले गए थे ना, तो उसमें आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे ग्रीन होंगे, कुछ ऐसे पर्पल, येलो, कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स यू कैन सी। एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड कूल, ओके। सी, जो ब्रेड आपने कभी जो ब्रेड और चपाती रखोगे ना टिफिन में, अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि आपको एक ब्रेड लेना है एंड आपको एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर रखना है, तो आफ्टर 3-4 डेज उस पर ग्रीन एंड वाइट कलर का फंगस आ जाता है। तो दैट फंगस विल लुक लाइक दिस अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। इसके देखो कितने अलग अलग शेप है। ये जो है आपको, ये रेड ब्लड सेल है, दिस इज स्पाइरोगायरा, ओके।
देखो कितने अलग अलग वैक्सीन है। अभी हमें तो वायरसेस के बारे में भी पता है ना, वायरसेस, कोरोना वायरस सबको पता है, कोविड सबको पता है, राइट? तो वायरसेस का स्ट्रक्चर हमने बहुत देख लिया है सिंस लॉकडाउन, एंड वी ऑल आर अवेयर कि अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते कैसे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे? यू विल सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस। एंड ये स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट यू आर सीइंग। कुछ ऑब्जेक्ट पिंक दिख सकते हैं, कुछ ऑरेंज, येलो, हर एक कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड आउट। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट, अब जब हायर लेवल पे आप जब ये करोगे ना, यू विल जस्ट लव इट टू जस्ट check the microscope, check the microorganisms under the microscope, एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक मूवमेंट को कैप्चर करो, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लगता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सीनरी। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, ओके? तो अब यहाँ पे जो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, आप उनके साइज के बारे में क्या बोल सकते हो? बिकॉज वी कैन सी दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल कि हमें वो दिख रहे ही नहीं है। पर जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे, यू विल सी दैट द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना? तो इनका साइज जो है वो अलग होता है, ओके? सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड or the strands of the algae in ponds, they are multicellular. Now what do you mean by multicellular? Multi मतलब क्या? Many, और cellular मतलब क्या? Cell. तो this microorganisms, they are made up of many cells, okay? However, most organisms such as bacteria and viruses are unicellular. Unicellular मतलब क्या? यूनी मतलब सिंगल एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। तो जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, एंड फंगसेस एंड जो अलगे आप देखते हो दोज आर मल्टी सेल्यूलर, ओके? So they have somewhat different cellular structure. So this unicellular and multicellular, they will have different cellular structure. उनका सेल का structure जो है वो different होगा, okay? And they do not have the membrane bound organelle which is found in eukaryotic cell. अब unicellular किस में आता है? You know, unicellular जो है they will be prokaryotic. What they will be? इनका सेल कैसा होगा? दे विल हैव प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एंड ये वो उसमें सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एंड इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दिस MBO, ओके? MBO, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? दिस MBO, ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, न्यूक्लियस देखा था, साइटोप्लाज्म देखा था, तो वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इट इज प्रेजेंट इन दी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दिस यूकैरियोटिक सेल्स, ओके? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड आर देयर ओनली कंपोनेंट, एंड सच सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। उनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे सारे नहीं प्रेजेंट होंगे। दे विल जस्ट हैव दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड विल बी देयर ओनली कंपोनेंट। इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, ओके? नाउ सी द नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, NCCS, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NCCS, is in Pune. It is an institute which is involved in research in the field of cell science. अब जो सेल के ऊपर जो फील्ड के अंदर सेल पे स्टडी की जाती है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जैसे आपको पता है बायोलॉजी होता है जिसमें हम अलग अलग बायोलॉजी रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड स्टडी करते हैं, राइट? वैसे ही अगर आप सेल्स पे स्टडी करोगे, सेल साइंस पे, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यू स्टडी अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग, you study about DNA, you study about RNA, you study many things in biotechnology.
वैक्सीन कैसे बन रही है, दैट कैन ऑल्सो बी द रिसर्च कैन बी डन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अभी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड यू माइट हैव हर्ड कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही वैक्सीन पे रिसर्च की जा रही थी, एंड दे वर द पीपल जो वैक्सीन को डेवलप करने में दे वर ऑल टुगेदर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द वैक्सीन जो कोविड को क्योर कर सके. बिकॉज कोविड जो है वो क्या है, इज अ वायरस, एंड वायरस के ऊपर वैक्सीन निकालना है तो कौन निकालेगा, द पीपल हु आर स्टडिंग दैट. सो दैट इज इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड. ओके, now see, this is a prokaryotic cell. Again, one homework for you, you have to draw this prokaryotic cell 2 times in your notebook. अब देखो ये prokaryotic cell, you have to understand this. prokaryotic cell कैसा होता है, इसमें ज़्यादा करके unicellular organisms होते हैं prokaryotic में. ओके, अब इनके पास क्या क्या होता है, they have this cell wall, they have this plasma membrane which is also called as cell membrane. They have nucleoid, they have cytoplasm, they have ribosomes, they have plasmid, and they have flagella. You know what is the function of this flagella? आपको इनके पास legs दिख रहे हैं क्या? You cannot see the legs, right? तो flagella is a organ which helps in locomotion. Locomotion करना मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में इन सेल्स को हेल्प कौन करता है, flagella. The flagella is an important organelle in them because they help them in locomoting from one place to the other. Okay, so you have to draw the diagram of this flagella in your notebook for 2 times. Okay, now see, growth of microorganism. Now we studied कि आप microorganisms होते क्या है, आप उनको observe कैसे करोगे, आप उनको measure कैसे करोगे, right? Now how this microorganisms will grow? So each microorganism, they need a specific environment for the growth and reproduction. Microorganism का growth ऐसे ही नहीं होता, उन्हें एक specific environment देना पड़ता है so that they grow and they reproduce. जैसे कि अभी अगर आपने एक ब्रेड या बाकरी को टिफिन बॉक्स में बंद करके रख दिया for 2 to 3 days, आपने उनको एक specific condition, एक specific environmental condition provide की है, right? तो अब because they have got that chance to grow, they will grow and they will reproduce. and आप देखोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बाकरी एंड चपाती पे ग्रो कर जाएंगे because they have got their condition that is required for the growth, right? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए, एंड कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के, मीन्स दे कैन ग्रो without oxygen also. Okay, and some microorganisms, they survive even in extreme and adverse condition like ocean floor, ice in polar region, hot water spring. अभी हमने सुना है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा they will get killed. इसलिए हम पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, हम ये बोलते हैं, राइट? बट देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गर्म पानी में भी दे विल नॉट डाई, आइज आ जाए देन ऑल्सो दे विल नॉट डाई, ओशन फ्लोर में भी दे विल नॉट डाई. सो दे हैव दैट कैपेसिटी कि वो एकदम एडवर्स कंडीशन, मतलब एकदम खराब से खराब कंडीशन में भी दे कैन सर्वाइव. There are some of the microorganisms like that also. Okay, so during the adverse condition, microorganisms form a thick covering around themselves. Suppose this is a microorganism and कुछ ऐसा adverse condition आ गया है जैसे कि ocean floor, ice in polar region, hot water spring. तो ऐसे condition में microorganisms क्या करते हैं, वो अपने surrounding एक thick covering बना लेंगे and they will stop their life process. Okay, तो ये कवरिंग बनाने के बाद वो अपनी लाइफ प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब ये सारे कंडीशंस खत्म हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन, जब वो अपने फेवरेबल कंडीशन में आ जाएंगे तो वो अपना प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उन्होंने बनाया था वो उसको निकाल देंगे एंड दे विल कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेसेस. तो सो सी हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मार्ट. उनको जब भी पता चला कि एडवर्स कंडीशन आ गया है वो अपना प्रोटेक्टिव कवरिंग ले लेंगे एंड जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा एडवर्स कंडीशन, they will remove the protective covering and they will start their life processes. So microorganisms are smarter than you. Okay, जैसे बारिश आती है तो हम रेनकोट पहनते हैं,
बारिश जाएगी तो वी विल रिमूव द रेनकोट. द सेम थिंग हैपेंस विद दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. Now where do microorganisms grow? आपको क्या लगता है, where do they grow? See, the medium for the growth is soil, water, decaying matter. Decaying matter मतलब जो खराब हो रही हो, खराब चीज हो रही होगी उस पे ग्रो करेंगे. Decaying matter के अंदर plants and animals भी आते हैं. बट कैसे plants and animals? It includes dead plants and animals. Okay? तो उनके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. अब इनका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री के टेम्परेचर तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो प्रॉपरली. एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन? अभी हमें भी अपना काम करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी एंड फॉर दैट वी नीड सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है. सो देयर आर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स विच दे नीड. अलगे, क्लोरोफिल. सी फॉर एग्जाम्पल अलगे को कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है? दे नीड क्लोरोफिल एंड दे नीड ऑक्सीजन. सो दिस आर द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. एंड व्हाट इज द फेवरेबल एटमॉस्फेयर दैट दे रिक्वायर? दे रिक्वायर अ मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर that the microorganism requires so that they can grow properly. Okay. Now, according to the shape and the life processes, microorganisms, they are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. An important question for 1 marks. It can be asked as according to the shape and life processes, how are the microorganisms classified? So you should know that the microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. Okay, this is an important question. Remember this. Now what are useful microorganisms? And we will be studying about the fermentation process also. ठीक है. Then we will be studying about harmful microorganisms, what are pathogens. Okay, so these are the things that we are left with and we will study this. अभी हमें पता चल गया microorganisms को कौन सा condition चाहिए, how they will grow. But now we should know that there are 2 types of microorganism. एक होते हैं useful microorganism and एक होता है harmful microorganism. See, the microbes which are present in soil, dung, etc. they decompose the garbage to obtain the food material. अब ये जो माइक्रोब्स हैं उनको भी खाना चाहिए ना. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल और डंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो गार्बेज को डिकम्पोज करेंगे एंड ये डिकम्पोज करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना मिल जाता है. इससे क्या होगा? जो गार्बेज है, जो हमारा कचरा है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और ये मैन्योर इज़ वेरी गुड फॉर द सॉइल एंड फॉर द प्लांट्स. ओके, सो ये जो मैन्योर होगा दैट विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जिससे हमारा सराउंडिंग भी क्लीन होगा. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, राइट. एंड इन द केस ऑफ गार्बेज के केस में जहाँ पे सीवेज डिस्पोजल, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल में हेल्प कर रहा है, माइक्रोब्स जो है दे आर रिलीज्ड इनटू द सीवेज so as to help in the quick decomposition of the organic compounds in it. सीवेज के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज किया जाता है ताकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है सीवेज के अंदर वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए एंड अ मैन्योर गेट्स रेडी आउट ऑफ इट. ओके, वी हैव सीन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दोज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड. अब पता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारा जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्लांट्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते. फॉर दैट दे नीड टू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. ठीक है, तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज राइजोबियम. ओके, राइजोबियम एक माइक्रोब है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स में, जो
प्लांट्स को हेल्प करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में, ओके। एंड दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड, इससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, एंड जो भी प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, दैट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, ओके। नाउ लेट्स रिकॉल, एंड कैन यू टेल मी व्हाट डज योर मदर डू टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क? जब ममा को मिल्क से योगर्ट मतलब दही बनाना होगा, तो व्हाट डज योर मदर डू? शी जस्ट बॉइल्स द मिल्क, ओके। देन वो उसको ठंडा करेंगे एंड उसके बाद दे विल हैड अ स्पूनफुल ऑफ योगर्ट इन इट, एंड सुबह जब आप देखोगे व्हाट विल हैपन, वो मिल्क पूरा योगर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो if a few drop of yogurt or buttermilk are mixed with lukewarm milk, lukewarm मतलब हल्का गरम, हल्के गरम दूध में जब आप कुछ ड्रॉप ऑफ योगर्ट या बटर मिल्क डालोगे एंड आप उसको कौन से टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पे रखोगे फॉर 8 to 10 hours, पूरी रात रखोगे, तो क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट थे ये वाले ड्रॉप्स योगर्ट्स और बटर मिल्क में, दोज माइक्रोब्स दे विल मल्टीप्लाई क्विकली, जिससे क्या होगा, द मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, ओके। व्हाई द मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योगर्ट ओवरनाइट? क्या हो रहा है, क्या जादू हो रहा है उसमें? बिकॉज योगर्ट के पास कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं मिल्क को योगर्ट में फिर से कन्वर्ट करने में, ओके। सो दिस माइक्रोब्स दे आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, buttermilk, cheese, etc. Okay, so these are the useful microorganisms which are allowing us to make yogurt from milk, right? अब ये होता कैसे है? This happens because of the fermentation process. अब fermentation process क्या होता है? It is the chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound. एक carbon compound is getting converted into another carbon compound. किसके वजह से? By the action of this microorganism. इसको ही हम बोलते हैं fermentation process. Okay? अब see, heat is generated in this process and carbon dioxide and some other gases are released. तो ये प्रोसेस में हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो हीट जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा CO2 and some other gases will also be formed. Okay, so these gases they cause an increase in volume. आपको पता है जब मम्मा को इडली बनाने होती है तो one day before she prepares a batter जहाँ पे वो राइस को पीस के वो उसको रखती है, एंड अगर सपोज दिस इज द कंटेनर जिसके अंदर मम्मा ने वो रखा है पूरा, रात को वो इतना था, मॉर्निंग में व्हेन यू विल सी इट विल गेट फुल एंड इट विल फ्लो डाउन ऑल्सो. व्हाई दिस हैपेंस? ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हम यूज कहाँ पे करते हैं? मिल्क से दही बनाने के लिए यूज करते हैं. फिर जो ग्रेन्स होते हैं उससे हम अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फ्रूट से अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है. ठीक है, फिर ये फ्लोर से ब्रेड से फ्लोर बनाने में यूज़ होता है. एसिटिक एसिड बनाने में फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है. सिट्रिक एसिड बनाने में, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक, ये सारे प्रोसेसेस में वी आर यूजिंग फर्मेंटेशन. ओके, सो फर्मेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जहाँ पे one carbon compound is getting converted into another type of carbon compound by the action of microorganism. This is important, by the action of microorganism. Okay, so the definition for fermentation is also important. ठीक है, then use your brain power and tell me why is yogurt mixed in the batter or dough for making rava idli and bhature naan. आपको पता है जो रवा इडली भटूरा होता है उनका जो बैटर होता है वो राइज हो जाता है. सपोज ये कंटेनर है, इतना था पहले, एंड उसमें योगर्ट डालने के बाद ओवरनाइट रखने के बाद ये इतना बढ़ जाता है इसका लेवल. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज योगर्ट के पास कुछ माइक्रोब्स है एंड यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, एंड दैट इज द रीजन ये होता है. ओके, नाउ हाउ डू प्रिपरेशंस लाइक योगर्ट, इडली, डोसा बिकम ईजी टू डाइजेस्ट? See,
If the microbes they are allowed to grow in batter, dough or fruit juices, they break down these substances producing new compound. अभी हमने क्या बोला, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज ओनली फर्मेंटेशन, राइट, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. तो अगर हम लोग माइक्रोब्स को अलाउ कर रहे हैं सब्सटेंसेस को ब्रेक करके दूसरे कंपाउंड्स में फॉर्म होने में, ग्रो करने में एंड मल्टीप्लाई करने में, तो दिस preparations become easy to digest, right? And ये microbial process ये हम use करते हैं बहुत सारे अलग अलग foodstuffs जो हम बनाते हैं, उसकी production में भी use this various types of microbial processes. Okay, sometimes when you are ill, जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ कैप्सूल्स और इंजेक्शंस देते हैं. उसमें से एक इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन मेडिसिन भी होती है, राइट? So this type of medicines they destroy the pathogen and retard their growth and they are called as antibiotic. important ठीक है. अब जो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन देते हैं, ये पेनिसिलिन का काम क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन है उसके ग्रोथ को स्टॉप करना एंड उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, पैथोजन का, सॉरी पेनिसिलिन का. एंड पेनिसिलिन इज व्हाट, पेनिसिलिन आर एंटीबायोटिक्स विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू. ओके, अब ये एंटीबायोटिक बनते कैसे हैं, ये बनते हैं यूजिंग स्पेसिफिक माइक्रोब्स, बिकॉज दिस आर द यूजफुल माइक्रोब्स वी आर स्टडिंग. तो माइक्रोब से हमें दवा भी मिल रहा है विच इज डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन, राइट. देन डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा विच आर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्योरेबल. पहले ही बोला जाता था कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा कभी ठीक ही नहीं होगा, बट नाउ बिकॉज हमारा एंटीबायोटिक्स पे कंट्रोल है, बिकॉज वी आर नोइंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस डिजीजेस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड. ओके, then domestic animals too can be protected from various diseases by mixing antibiotics with their food. अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस होती है. सो हम क्या कर सकते हैं, उनके खाने के साथ एंटीबायोटिक को मिक्स करके उनको खिला सकते हैं, सो दैट दे बिकम हेल्दी. ओके, प्लांट में जो भी डिजीज होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के यूज के थ्रू. ओके, सो दिस एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now always remember, though the antibiotics are useful for curing certain disease, they can be harmful if used without consulting a physician. Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor's prescription only. आपको कोई भी एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेनी है. जब तक आपको डॉक्टर वो ना बोले खाने के लिए तब तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी. Okay, in fact, we should not take any medicines on our own to treat ailments like body ache, headache, common cold. अगर हमें छोटी सी छोटी चीज़ हो रही है तभी भी हमें कोई भी medicines नहीं खानी है. Okay, now how a vaccine is produced? A vaccine is produced in a lab with the help of microbes. Microbes के help से ही vaccine भी बन रही है. और ये वैक्सीन का काम क्या है, हमारे बॉडी को कोई भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी देना, पावर देना टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. ओके, तो अगर हम वैक्सीनेटेड है तो हम कोई भी डिजीज को हरा सकते हैं, बिकॉज हमारा इम्यूनिटी जो है वो अब वो डिजीज से फाइट कर सकता है. अब हम कोविड वायरस में हम वैक्सीन का वेट क्यों कर रहे थे, और जब वैक्सीन आया तो सबने वैक्सीन लेना क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज वैक्सीन के पास पावर आएगी. जब आप वैक्सीन लगा लोगे तो आपकी बॉडी के पास पावर आएगी टू फाइट अगेंस्ट द कोविड वायरस, इसलिए हम लोग वैक्सीन का वेट कर रहे थे. ओके, एंड दिस माइक्रोब्स दे आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रोसेसिंग लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अगाव, एंड सम माइक्रोब्स यूज ऑयल फॉर देयर ग्रोथ. कुछ माइक्रोब्स को ऑयल की भी ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ. ओके, सच माइक्रोब्स दे आर यूज टू क्लियर अ लेयर ऑफ ऑयल विच आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन or lake which are formed due to the leak or spill to clear the oil's leak. Suppose this is the layer of water and आपको पता है बाहर से बहुत सारा ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, तो जब वो पानी के थ्रू आता है what happens, शिप से वो ऑयल स्पिल हो जाता है, पानी के ऊपर गिर जाता है. ओके, सो दिस इज द लेयर विच इज फॉर्म, राइट. तो ये लेयर पे सपोज ऑयल का एक ड्रॉप गिरा हुआ है. अब इस लेयर पे पानी के अंदर कौन है, फिशेस है. फिशेस को किसकी ज़रूरत होती है, फिश नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल, है ना. तो बिकॉज यहाँ पे ऑयल का लेयर फॉर्म हुआ है, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो व्हाट कैन बी डन, हम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर डाल सकते हैं जिनका खाना ऑयल हो. सो व्हाट विल हैपन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑयल को खा जाएंगे,
तो यहाँ पे भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकेम यूजफुल टू अस बिकॉज वो ये ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, सो दैट द फिश विल गेट प्रॉपर ऑक्सीजन, ओके, एंड द फिश विल नॉट डाई. फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फिशेस, वेट गार्बेज एक्सेट्रा, इसको भी कलेक्ट करके वी कैन यूज दिस इन बायोगैस प्लांट to produce biogas and fertilizers, which are very important. Okay, so this microorganisms, they are very useful for us. Now अभी मैंने आपको बताया था that some of the microorganisms they are useful while some of the microorganisms can be harmful as well. तो useful तो हमने पढ़ लिया. Now what are the harmful microorganisms? अब इनको हार्मफुल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज दे आर हार्मिंग अस और आर एनवायरमेंट इन सम और द अदर वे. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू द स्वीट मीट और द ब्रेड विच इज फॉरगॉटन इन अ लंच बॉक्स फॉर 3 to 4 days? अगर आपने अपने लंच बॉक्स में ब्रेड को या फिर किसी मिठाई को ऐसे ही रख के छोड़ दिया एंड यू फॉरगॉट द टिफिन बॉक्स, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days? It will have fungus which will be grown on it, green and white color का cotton like fungus, right? So this is harming the food, right? If jars of pickle or jams, murabba, are opened after a long time, a round layer of white scum or a black particles may appear to have formed on the surface. अब जो हम अचार घर में बना के रखते हैं, जैम्स रखते हैं, उसको अगर बहुत दिन तक खोला नहीं हमने तो what will happen? उसके ऊपर आप देखोगे, सपोज दिस इज द जार, इसके अंदर अचार रखा हुआ है, यू विल सी दैट अ ब्लैक कलर और वाइट कलर का फंगस लेयर विच विल बी फॉर्म्ड इनसाइड इट, है ना. समर में जब आप देखोगे तो जो मिल्क होता है एंड जो मीट होता है वो जल्दी से खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द वार्म टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग इनसाइड द मिल्क एंड द मीट, इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड इजीली एंड क्विकली, राइट. तो ये क्या होता है, इन सारी कंडीशंस में फंगस ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड स्टेल फूड पे. And what do we do with such spoiled food? We need to throw that, right? Because अगर आप उसको खा लोगे तो what will happen? You will fall sick and you will have this food poisoning. So as they use food stuff for their own nutrition, some microorganisms release toxic material. अब जो microorganisms grow करेंगे on this spoiled food, this microorganism they will release some toxic material like enterotoxin जो हमारे खाने में है. अब वो खाना अगर आपने खा लिया तो what will happen? You will get food poisoning. So eating such spoiled food can cause loose motions and vomiting. So we should never eat this spoiled food. Otherwise what will happen? We will get food poisoning. Okay. Now use your brain power and tell me, how will you know that a foodstuff is spoiled? We will know it through the odor it is having. Odor मतलब क्या होता है? Through the smell. We can know it through the taste. उसके कलर से भी हमें पता चल सकता है, right? So these are the things that we see before checking whether the foodstuff is spoiled or not. Okay. Now what precautions will you take while purchasing food and why? We should always check the expiry date and we should always check the manufacturing date. Now why it is important to check them? Because अगर आपने check नहीं किया and if the purchased food is expired, you will get food poisoning and your health will be affected, and hence you should always check the expiry and the manufacturing date before purchasing any of the food. Okay. And why do food poisoning incident occur during marriage or other community fest? क्यों होता है ये? Because मैरिज के टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड दे माइट कैरी दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर समर सीजन में मैरिज होगा तो इट मे गेट स्पॉइल्ड क्विकली, है ना. So that are the reason. Now always remember, we should always eat fresh and properly covered food. You should always drink boiled water. You should hold a handkerchief over your mouth and nose when you cough and sneeze. Okay. And don't allow garbage and water to accumulate around your house. Otherwise what will happen? All the mosquitoes will sit on it and you can get malaria through that. Okay. So we should never allow garbage and water to accumulate. मतलब क्या? जमा होने नहीं देना है हमारे घर के आसपास. So these are some of the good habits which we should maintain and follow. Okay. Now see, what are pathogens? Pathogens वो होते हैं जो कोई भी disease को cause करने में help करते हैं. Okay. So see,
डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस. ओके, अब ये पैथोजेंस प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये पानी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. पानी कहाँ पे? जो सीवेज होता है, डर्ट होता है हमारे सराउंडिंग में, जो हम खाना ऐसे ही ओपन रख देते हैं ना खुला, उनमें भी पैथोजन प्रेजेंट हो सकता है. अगर उस पर हाउस फ्लाइज घूम रही है, खाने के ऊपर अगर हाउस फ्लाइज बैठ रही है, इट मीन्स द हाउस फ्लाई माइट हैव द पैथोजन एंड उन्होंने फिर वो खाने पे रख दिया एंड यू विल ईट दैट, राइट? सो दिस आर द पैथोजेंस विच कॉज अस डिजीज. ओके, एंड अगर आपने ये पैथोजेनिक फूड खा लिया, खराब फूड खा लिया, तो क्या होगा? यू मे फॉल इल विथ डिजीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा. यू विल हैव फीवर, you will have cold and cough, right? So like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. These are the diseases which may occur if you will eat this contaminated food or water. Okay? अब ये pathogens release कहाँ पे होते हैं? These are released in the air when a person having an infection of the respiratory tract sneezes or coughs. अगर कोई ऐसा person है जिसको infection हुआ है and अगर he will sneeze or cough, what will happen? ये पैथोजन एयर के अंदर रिलीज होगा एंड कोई भी हेल्दी पर्सन जब इस एयर में ब्रीथ करेगा, what will happen? उसको भी ये सारे डिजीजेस हो जाएंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. So this is how the pathogen is spread in the environment. Okay? Then mosquitoes, they reproduce in places like heaps of garbage. जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज होता है वहाँ पे मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस करते हैं. दे इंक्रीज द नंबर. ड्रेन्स के पास जहाँ पे पानी जमा होगा वहाँ पे. ओके, then the microbes that cause diseases like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, zika fever, these are the microbes which cause these diseases. They gain entry into the human body through the bite of a female mosquito. जब आपको एक female mosquito bite करती है, that time only we get this malaria and all. Okay, so for clearing all the garbage, because that is causing so many of disease, one thing was initiated by the government of India, which was called as Swachh Bharat Abhiyan, right? We all are aware of this. तो इसमें almost 80% of all the diseases occur due to uncleanliness, because we are not clean, and that is the only reason we are getting different types of diseases. So keeping our surrounding clean, avoiding litter and disposing garbage properly, avoiding defecation in the open are some of the easy ways to stop the spread of the disease. अगर हमें डिजीज को फैलने से रोकना है तो वी शुड स्टॉप littering here and there. We should dispose of the garbage in proper place. We should not defecate in the open place. Okay, the Swachh Bharat Abhiyan is a national movement which has started several years ago to increase awareness about public hygiene along with the habits of personal hygiene. तो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था ताकि पीपल दे गेट अवेयर ऑफ दिस public hygiene as well as personal hygiene. Okay, so let us participate in this movement by starting a cleanliness drive in our school and our neighborhood. You can just start a cleanliness drive in your society itself ताकि आपकी पूरी society clean हो. And if your society is clean, it means every one of you are healthy, right? Now make sure to check that the water tank in your society is clean or not. The water tanks and the toilets in the society, they are clean or not. Then you have to check whether the water is accumulating in the pots, tires or cans, and if they are accumulating, you have to clear that as early as possible. Okay, and you have to check that the water storage containers, they are cleaned regularly or not. So you should check these 4 things so that we become healthy and we follow a personal as well as public hygiene. Okay, do you know what exactly happens when we have fever? Do any of you know? See, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है? जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तभी होता है. एंड आवर बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, तभी हमें फीवर आता है. ओके, सो द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड if the microorganism enters our body, our immune system start acting and body temperature rises. अगर आपके बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है तो आपको फीवर होगा. ओके, अब
फीवर होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एंड दिस विल डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील्स वार्म फॉर द सेम रीजन. अगर आपको कहीं लगा होगा तो वहाँ पे भी गरम गरम लगता है ना, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट्स किल्ड इन दी warm place, and this is the reason it happens. Okay, now can you tell me what happens if the clothes remain damp in the rainy season? What are the black or the white spots sometimes seen on a gunny bag? These are the fungus, right? And अगर आपने clothes को रख दिया ऐसे rainy season में, तो what will happen? उस पर भी fungus लग जाएगा. And why are the leather articles like purses, wallets, belts, footwear, they are always polished before storing away? ताकि उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए, एंड द फंगस शुड नॉट अफेक्ट द लेयर. ओके, एंड कुछ पाउडरी मटेरियल हमें ओल्ड करेंसी नोट्स पे आती है. व्हाट आर दोज आर थिंग्स सो दैट द इट शुड नॉट गेट फंगस और इट शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. ओके, so all the materials which are mentioned above, that is the gunny bag, cotton clothes, paper, rubber, they are plant product and leather is an animal product, right? ये plant and animal products हो गए. So in a humid temperature, fungi and some other microorganisms will grow on this article and they can spoil and damage these articles. Okay, so we should store them and we should keep them properly so that we doesn't have fungus or microorganisms grown on it. So I hope that you are clear with the lesson, you are clear with all the cell structure, what are microorganisms, what are useful microorganisms, what are harmful microorganisms. So with this we are done with the lesson, and I hope that you have understood each and every concept which has been covered. Thank you everyone.